everyone, and namaste. Namaste from me, Pooja Shah, and my partner, my life partner, my business partner, Ankur Shah. So I know most of them are meeting him for the first time. So let me introduce more that we both are now, working together. We are growing together in our relationship also and in our business also. So, मैं Pooja Shah from Pune, Maharashtra. Even of course he also, Ankur Shah from Pune, Maharashtra, and we are life coach, and we are into this field from 14 plus years. अब तक आप इन्हें हमेशा backstage देखा करते थे. So he used to help me in all the technical work. So today I am because of him, definitely. I have all the freedom to do everything just because of him, and of course my parents and my in-laws also. So let's move ahead. And my beautiful daughter, she's the one who always, teaches me this is right, this is wrong. So even I learn from her. So let's start. Are you all ready? So कितने लोग यहाँ relationship में struggle कर रहे हैं? Genuinely chat window पे yes लिखिए. कितने लोग genuinely struggle कर रहे हैं अपने relationship में? उसके साथ और एक question है. How many of you want to stop that struggle and have the freedom to live in a relationship? So रिश्ते में जीना is something very important. कितने लोग अपने रिश्ते में जी रहे हैं like us? Yeah? Okay, so I'm seeing the answers here. Great. So let me tell you one thing. आपको याद है ना शादी के वक्त हम कुछ 7 फेरे लेते हैं, and I'm sure आपने वो भूल चुके होंगे. जो मैरिड है वो तो भूल ही चुके होंगे कि क्या थे वो 7 फेरे. पता भी नहीं यार. वो पंडित मंत्र पढ़ता था, कुछ बोलता था, हम सुन लेते थे बिकॉज वो नियम था. सालों से वो प्रथा चली आ रही है, तो हम भी बैठ जाते थे. एक तो हम इतने नर्वस और एक्साइटेड रहते थे कि भाई शादी हो रही है, तो मंत्र पे कौन ध्यान दे, है ना. चलो छोड़ो उस मंत्र पे. हमने कुछ नए मंत्र हम एक दूसरे में हमने बनाए रखे थे, and I really wanted to share this today. How many of you want to listen to that? Yay, thank you. So, are you ready? Yes. Okay, that's powerful. Everybody can hear us? Just give me a good. Yes, thank you. Okay, so I love and respect you. I also love and respect you. Wow, thank you. I accept the way you are. I also accept the way you are. Thank you. I accept the positive and the negative inside you or about you. I also accept the positive and negative inside you. Okay, thank you. I give you time, space, and all the freedom. I also give you and will give space, time, and freedom. Oh, thank you. Okay, I feel proud. I really feel proud, when you grow independently. I also feel very proud when you grow independently. Thank you. And I will always support you and always stand beside you. I will also support you and stand beside you. Thank you. I will never take you for granted. I will also never take you for granted. You are a blessing. You are also a blessing. Hey, thank you. So, this is we. How many of you love this kind of sentences, what we shared? So, these are not sentences. This is like what we experience and practice every day. How many of you would love to have this kind of relationship? Type in I and we in the chat window. In fact, we. Come on, quickly. Even if you're not married, even if you're, planning to get married, that's all okay. You can still write it, Why not manifest such kind of relationship? And why I wanted to share this, आज के दिन में हम हर चीज का फ्रीडम चाहते हैं और हम पा ही लेते हैं. बट रिलेशनशिप एक ऐसा है ना, अगर उसमें हमें फ्रीडम नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, आई एम श्योर आप स्टक्ड अप फील करते हो लाइफ में, है ना. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर टुडे कि हम इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं. सो आर यू ऑल रेडी? एंड आई होप यू आर रेडी विद अ नोटपैड एंड पेन, क्योंकि यस, मैं आज कुछ ऐसे टेक्निक सिखाने वाली हूँ, आज कुछ मैं समझाने वाली हूँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशनशिप? आपके हिसाब से रिश्ते होते क्या है? तो हो सकता है हमने जो आज 7 promises हमने जो आपके साथ शेयर किया है या थॉट्स शेयर किए हैं, उसमें ही वो आंसर कहीं छुपा हुआ है. So quickly. What is relationship? Hey, come on in the chat window, quickly. Okay, I'm reading some companionship of 2 people.
Yes, I want more. Come on, quickly. Care, okay. Trust and understanding, okay. Trust, okay. Freedom to live happily. A partner to balance life, okay. Understanding, respect for partner. Love and respect, okay. Or kuch. Trust and happiness. Oh, so he's saying trust and happiness. Okay, anything? Acceptance. Okay, acceptance. Yeah, then. Value for each other. Okay, value for each other. Powerful. Give and take. Kavya ji. Okay. So Kalpana ji bhi keh rahe complimenting each other. So I think that is a Absolutely, very yes. powerful sentence. Wow. So I'm waiting for good partner. Definitely you shall get one. Understand each other. Yeah, of course. Complete Love. each other. Okay. So let me come to the correct answer, which we actually understood this. So relationship is any connection, okay, any connection between two people which can be either positive or negative. वो एक ऐसा कनेक्शन है जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बट हम कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं, उसे रिश्ता कहते हैं. रिश्ता, रिलेशन डज नॉट मीन दैट कंप्लीटिंग ईच अदर एक्चुअली. वरना अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप फील करोगे मैं तो अधूरी हूं, है ना. बट दिस इज समथिंग रॉन्ग. ऐसे कितने लोग हैं जो अकेले रहते हैं बट फिर भी खुश है. तो हम ऐसा नहीं कहेंगे. हमें ऐसा कहना चाहिए दैट वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी एड वैल्यू टू ईच अदर्स लाइफ. तो ये एक सही सेंटेंस है. एंड एक्सेप्टिंग द पर्सन विथ इट्स पॉजिटिव्स एंड इट्स नेगेटिव्स, इसे कहते हैं रिश्ता. आपको पता है रिश्ता कितने प्रकार का होता है? डू यू नो? Do you want to know that today? There are 6 types of relationships, my friends. 6 types. आप सोचते रहेंगे 6 type of relationships? Yeah, actually 6 type of relationships. And चलो हम चलते हैं उसके बारे में समझते हैं. एक रिलेशनशिप है प्लेटोनिक. लिख लीजिए प्लेटोनिक. ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप है क्या? It's like it's a close friendship, okay? With the characteristics of like closeness, fondness, understanding, respect, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, केयर करना, सपोर्ट करना, ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस. तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, ये एक्चुअली हेल्प करता है और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीजेस. यस, आप सही सुन रहे हैं. ऐसे काइंड का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो एक्चुअली हमारे लाइफ में डिजीजेस को भी खत्म कर सकता है. डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को खत्म कर सकता है और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है. आज जो मैं आपके साथ टाइप ऑफ रिलेशनशिप शेयर करने वाली हूं ना, हो सकता है यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग 1 or 2 टुगेदर और 3 टुगेदर. दैट्स ऑल ओके. ऐसा ही होना चाहिए. सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज रोमांटिक. आई एम श्योर काफी लोग जब हम यंग रहते हैं तो हम सोचते हैं हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे करूंगी, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, फेरी टेल्स बनाते हैं. आई एम श्योर मूवीज में देखते हैं तो कैरिड अवे हो जाते हैं, स्पेशली दोज रोमांटिक मूवीज ऑफ लाइक शाहरुख खान एंड ऑल दैट, लाइक द वे दे डू. सो डेफिनेटली हम कैरिड अवे हो जाते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड रोमांटिक रिलेशनशिप. इट्स डेफिनेटली इट्स फीलिंग ऑफ लव, attraction through intimacy, commitment, and also infatuation. वो भी होता है ना, बहुत बार infatuation हो जाता है ना लाइफ में, बट जरूर नहीं उसी के साथ हमारी शादी हो. सो मैं आपके लिए लाइक आई वांट टू एक्सप्लेन दिस एवरीथिंग. सो ये रोमांटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो होता है ना, दे हैव पैशन, इंटिमेसी, लव, डिसीजन होता है, कमिटमेंट होता है एक दूसरे के बीच में. चांसेस ऐसा है कि स्टार्ट में फीलिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े पैशनेट होते हैं. और जैसे ये रिलेशनशिप मैच्योर होने लगता है या ज्यादा वक्त बीत जाता है ना ऐसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप में, जैसे वो डीप होने लगता है इमोशनली, इट गेट्स डीपर एंड डीपर, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा डीप होने लग जाता है. मतलब और भी ज्यादा हम क्लोज आने लग जाते हैं, समझने लग जाते, एक्सेप्ट करने लग जाते हैं. तीसरे टाइप का रिलेशनशिप है को डिपेंडेंट. हाँ लिख लीजिए, को डिपेंडेंट. एंड ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप ना मोस्टली इट्स लाइक विदाउट कमिटमेंट बट फिजिकली कनेक्टेड.
फिजिकली कनेक्टेड बट इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता. सो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, डिसफंक्शनल टाइप वाला है ना, बिकॉज कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ फिजिकली हम अटैच्ड है. सो इसमें क्या होता है, एक इंसान ना एक्ट्स लाइक अ गिवर. एक वो कपल में, दो जनों में एक जो होता है वो सिर्फ देता है और देता है, इज अ गिवर, कीप्स गिविंग और लविंग और केयरिंग, एंड द अदर पर्सन ओनली रिसीव्स इट. वो देता नहीं है, दूसरा पर्सन जो है वापस देता नहीं, वो सिर्फ लेते ही रहता है. एक्ट्स ओनली एज अ टेकर, रिसीवर. सो गोइंग टू द ग्रेट लेंथ, यहां कॉन्फ्लिक्ट्स आने के काफी चांसेस होते हैं, अंदर बहुत सप्रेस्ड फीलिंग्स होते हैं. इट्स लाइक फीलिंग लाइक यू हैव टू आस्क परमिशन, आपको परमिशन लेनी पड़ती है टू डू एनीथिंग इन लाइफ. इस रिलेशनशिप में कोई डिपेंडेंसी होती है ना, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या क्या मुझे ये परमिशन है. ये रिलेशनशिप डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट है. हमेशा ऐसा ही होता है कि हम दे ही रहे हैं इस रिलेशनशिप में और सामने वाला सिर्फ लेने की कोशिश करता है. वो सोचता ही नहीं है कि हमें रिटर्न में कुछ देना भी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए. नो, उसे लगता है मिल रहा है ना तो आने दो, हम क्यों एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में, वो कर रहा है ना सारी मेहनत, तो ठीक है. सो इट्स लाइक हमेशा हम सामने वाले पर्सन को इतना एलिवेट करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं और बस उसी को, बट हमें कुछ मिल नहीं रहा है रिटर्न में, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. सो इसे कहते हैं को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप. ओके, सो फीलिंग यू डोंट नो हु यू आर एक्चुअली इन द रिलेशनशिप. उस रिश्ते में आपको पता ही नहीं आप क्या हो, क्योंकि इतना आप सामने वाले को देते जा रहे हो कंटिन्यूस कि आपको पता ही नहीं आप हो क्या नहीं. एग्जिस्ट करते भी हो या इस रिलेशनशिप में, कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही हो, मैं हूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ देते जा रही हूँ, आप तो लेते जा रहे हो. So next type is casual. Fourth type is casual relationship. Yes. Everybody can hear me, no, clearly? Yeah, great. They can. So casual relationship में it involves physical connection without commitment, no expectations, only dating. यानी आप कह सकते हो टाइम पास, जो हम आजकल शायद देख पा रहे हैं, है ना. सो लाइक इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होता है, कोई गिल्ट फीलिंग ही नहीं होती है, इन दोनों में कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती है. इट्स लाइक यू कैन कॉल एज यू नो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और वन नाइट स्टैंड, आपने सुना हो. तो इसमें कोई कमिटमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, भाई तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मजा आ गया ठीक है, नहीं आ गया चलो बाबा टाटा टाटा बाय बाय सी यू. इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम रिलेशनशिप को कैसे बनाना है हम वो समझना चाहते हैं. बट आई वांटेड टू टेल यू द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट. फिफ्थ इज ओपन रिलेशनशिप. तो आप ये वर्ड से ही समझ गए होंगे ओपन रिलेशनशिप मींस व्हाट. लाइक in this relation both partners agree to have all the kind of freedom, all the kind of other relationships, इमोशनल हो या फिजिकल हो, है ना. तो उसमें लाइक सब चलता है ओपन. एंड द सिक्स्थ वन इज उप्स, इसके काफी केसेस हम देख चुके हैं. द मोस्ट डेंजरस एंड क्रिटिकल वन, टॉक्सिक रिलेशनशिप. एंड आई होप आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में से नहीं गुजर रहे हैं. टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट्स लाइक एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी टॉक्सिक if it is unhealthy, it is harming you emotionally, physically and psychologically. एक ऐसा रिश्ता जो आपको इमोशनली भी हर्ट कर रहा है, फिजिकली भी हर्ट कर रहे हैं और साइकोलॉजिकली हर्ट कर रहे हैं. इट कैन बी मेल फीमेल एनीवन इन दिस रिलेशनशिप. जरूर नहीं है कि आप सोच रहे हो सिर्फ मेल के लिए बनता है, नहीं, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो. और ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे. इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं ऐसे काइंड के रिलेशनशिप जो होती है ना टॉक्सिक, तो लैक ऑफ सपोर्ट, ये कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं. सबसे बड़ा चीज करते हैं वो ब्लेम, हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंपटीशन लगी रहती है एक दूसरे में, क्रिटिसाइज करते हैं, कंट्रोल करने जाते हैं, मतलब एक दूसरे का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं.
jealousy, dishonest, they are not honest, they disrespect, respect ही नहीं करते हैं, aggressive behavior है, यानी इतना गुस्सा भरा है ना एक दूसरे के लिए, भले ही वो पार्टनर्स है, लाइफ पार्टनर्स है, बट रहने के लिए रह रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिग्निफिकेंस, शायद समाज का डर या बच्चों की वजह से, या इट कैन बी एनीथिंग एल्स. सो इट कैन अफेक्ट. ऐसे रिलेशनशिप जो रहते हैं ना, इनमें कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर रहता है. इट्स नॉट लाइक प्लेटोनिक एंड रोमांटिक जिनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहता है. टॉक्सिक में कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर रहता है. दे कैन नॉट स्टैंड ईच अदर, मतलब एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं फिर भी रह रहे एक साथ. इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ, ये आपको आइसोलेशन में लेकर जाएगा, है ना, अकेलेपन में लोनलीनेस फील कराएगा. काफी बार तो ऐसे मन करता है कि बस कुछ ऐसा कर लो कि, एंड आई होप, आई जस्ट प्रे, आई होप you all are not going through this kind of relationship, because ऐसा relationship कोई मायने ही नहीं है. How do you define your relationship today? जैसे हमने आज स्टार्टिंग में इस सेशन के डिफाइन किया, what kind of relationship we have. आप लोग कैसे डिफाइन करते हो आपका रिलेशनशिप, या अगर आप मैरिड नहीं हो, how do you want, which kind of relationship do you choose to have? Because आपको एक फ्रेमवर्क तैयार ही करना पड़ेगा आज से ही कि मुझे इस तरह का रिलेशनशिप चाहिए. बिकॉज जैसे आप सोचोगे, फ्रेमवर्क करोगे, जितना आप, क्योंकि आप जैसे सोचोगे वैसा आप पाओगे, जैसे आप बिहेव करोगे वैसा आपका रिलेशनशिप बनता जाएगा. और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप सिर्फ कपल्स में नहीं होता है ना, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, सिस्टर्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, कजिन्स के साथ हो सकता है. एनी रिलेशनशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट क्या आपने सोच रखा है पहले से ही लाइफ में, माइंड में, कि किस तरह के आपके रिश्ते होने चाहिए? बिकॉज जब हम डिफाइन कर पाते ना हमारे रिलेशनशिप, तब हम उस तरह से बिहेव और एक्ट भी करते हैं हमारे लाइफ में. एंड द पॉइंट इज लाइक, a relationship is very good when it is very healthy. How many of you feel so? अगर वो हेल्दी है तो ही वो अच्छा है, वरना वो कुछ काम का ही नहीं है. वो ना हो तो ही अच्छा. मैं तो कहती हूँ कि अगर रिलेशनशिप खराब हो तो अकेला ही अच्छा, बट वो खराब रिलेशनशिप में रहकर जीने से अच्छा है कि इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज यू फील सफोकेटिंग, you really feel suffocating. And the quality of your relationship depends upon your communication. How many of you understand that? कम्युनिकेशन आपकी कैसी है, उस पर आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड करती है. मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आज, कितने लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात करते वक्त डरते हैं, 10 बार सोचते हैं कैसे बात करूं, कब बात करूं, सही सही समय सोचते हैं, सिचुएशन के लिए रुके रहते हैं, बिकॉज शायद वो समझते हैं कि मैं ऐसे बात करूं तो ऐसा तो रिएक्शन ना आएगा. Are you getting scared in your relationship? Are you searching for situation in your relationship? इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन क्या है, वीक है. आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन गो टू हिम, आई कैन गो टू हर एनी टाइम एंड आई कैन से हे कैन वी टॉक, एंड ही सेज यस व्हाई नॉट, वी कैन टॉक. You are important first, you are my priority. If you feel that confident, if you can hear this, that means your communication is good. But the point is, हम ना हमारे रिलेशनशिप में ना गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. यू नो व्हाई वी गिव अप इन रिलेशनशिप? पता है आपको? क्योंकि हमें जीतना ही नहीं आता है रिलेशनशिप में. हमारे रिश्ते को जीतना ही नहीं आता है, जिताना ही नहीं आता है. We don't know how to win, and that's why we give up. How many of you say छोड़ यार, जाने दे, कुछ होने वाला ही है, जाने देना, जैसे चल रहा है चलने दे, गिव अप कर देते हो. बिकॉज आपको पता ही नहीं है जीतना कैसे है इस रिलेशनशिप में. आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इंसान आपका है, आप उसके हो, यू आर विथ ईच अदर, यू आर फॉर ईच अदर. बट अगर आपके बीच में ही लड़ाई है, आपके बीच में ही इतना स्ट्रेच है, इतना धागा कमजोर है, तो आप दूसरों से क्या रिश्ता बना पाओगे?
आपको क्या लगता है बिजनेस में आप अच्छा रिश्ता बना पाओगे? आप घर में ही अगर अच्छा रिश्ता नहीं बना सकते तो बिजनेस में तो कमजोरी होगा, दोस्तों में भी कमजोर हो जाएगा आपका रिश्ता। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जिसके साथ आप पूरा वक्त रहते हो, ज्यादा वक्त रहते हो, अगर उन्हीं के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मतलब ही क्या बनता है? सो द पॉइंट इज, इनिशियल डेज में जब हम एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो उस इंसान के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है, एवरीथिंग, है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। लाइक उसकी स्माइल, उसके खाने का तरीका, भले ही वो ऐसे भी खाता हो ना, ओ कितना क्यूट, कितना अच्छे से खा रहा है, भले ही वो कैसे भी तरीके के कपड़े पहन के आता होगा ना, हाँ कितना अच्छा दिख रहा है ना ये ड्रेस, एकदम परफेक्ट लग रहा है, कैसे भी चल रहा हो, ओ कितने अच्छे से चलता है, कितने अच्छे से चल रही है, भले ही उसकी हैंडराइटिंग कीड़े मकोड़े की तरह है, समझ में भी नहीं आ रहा है, कितना मस्त लिखते हैं ये, कितना अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में ना आपको उनकी हर चीज अच्छी लगती है, और इतना सब अच्छा लगने लग जाता है कि आप ना हर चीज को पॉजिटिव साइड से ही देख रहे हो। और जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है और अचानक जब उसका रियल फेस या रियल हैबिट्स या रियल पैटर्न सामने आता है, यू आर इनटू अ शॉक। अरे पहले तो ये ऐसे नहीं थी, पहले तो ये ऐसा नहीं था, अरे वो वैसा ही था, तुम अंधे थे ना उसके प्यार में, जो उसका सिर्फ अच्छा 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 ही देख पा रहे थे, आप समझ ही नहीं आ रहे थे भाई वो इंसान है, रोबोट नहीं, उसमें अगर पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव चीजें भी होंगी। प्यार में ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अपनाना है। वो वही इंसान है जो आपको डांट रहा है ना, जो आपकी गलतियां निकाल रहा है, वो वही इंसान है जो आपको कल प्यार भी कर रहा था और कल वापस से प्यार भी करेगा। बट हम नहीं, एक बार जरा सा बोल दिया, खत्म, रिश्ता ही खत्म करने पे तुल जाता, आपने मुझसे ऐसे बात ही कैसे किया, हाउ डेयर यू। अरे भाई पहले जब बात करते थे तो चलता था, जस्ट बिकॉज यू नीडेड दैट रिलेशनशिप, और जैसे वो रिलेशनशिप इनटू मैरिज या इनटू अ गुड रिलेशनशिप बढ़ गया, आपने क्या कर दिया, ग्रांटेड ले लिया उस इंसान को, ग्रांटेड ले लिया। व्हाई? बिकॉज आपको वो मिल गया, जस्ट बिकॉज यू गॉट इट। जिसके लिए काफी लोग तो दुनिया से लड़ बैठते हैं अपने लाइफ पार्टनर को पाने के लिए, और बाद में पाने के बाद खुद ही लड़ते रहते हैं। अरे जिसके लिए दुनिया से लड़े हैं आप, और आप खुद ही लड़ रहे हो, कितना सही है ये? क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो आप, किस चीज का ईगो है, क्यों है ये ईगो? अगर आपको रिश्ते की जरूरत है ना, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी देयर टू कम, कन्फेस एंड एक्सेप्ट, एंड लिटरली लिटरली एक्सेप्ट एंड फॉरगिव। आज आप एक प्रॉमिस करो, अगर आपको सही में ये रिश्ता चाहिए, सही में रिश्ता ही चाहिए, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फॉरगिव भी करना पड़ेगा, फॉरगिव भी करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू really have this kind of relationship today? How many of you? For that आपको क्या करना पड़ेगा? Forgive, forget and accept. Behave what you are. कैसे हो आप? लविंग हो, काइंड हो, हम्बल हो, प्यार देने वाले हो, तो प्लीज बिहेव दैट वे ना। आप उस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे सामने वाला रिएक्ट कर रहा है, जो आपको वो किस तरह से दे रहा है आप उस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? डोंट कॉपी दैट पर्सन, बिहेव लाइक व्हाट यू आर एक्चुअली। इट्स ओके, ट्रस्ट मी, अपने आप वो सामने वाले इंसान को रियलाइज होगा and will change back to same the way you loved him and her, है ना? The point is, आप उस मोमेंट को रिकलेक्ट कीजिए ना, जब आप एक दूसरे में एक अच्छा मोमेंट आपने बिताया था। इनिशियल स्टेज में ऐसा तो एक सिचुएशन आया ही होगा जो बहुत ही अच्छा था, यादगार था। सीरियसली मैं चाहती हूँ आंखें बंद करो और याद करो उस मोमेंट को जो आपने बहुत बहुत ब्यूटीफुली बिताया था एक दूसरे के साथ, याद कीजिए।
लिटरली याद कीजिए, आंखें बंद करके फील दैट मोमेंट. आई वांट यू टू फील दैट मोमेंट. हाउ वाज दैट इनिशियल डेज, यू लुकिंग इन ईच अदर, एट ईच अदर. हर चीज वो इंसान का आपको एक दूसरे का पसंद आ रहा था. उसकी क्वालिटीज, वो जैसे भी दिखते हैं आपको वो अच्छा लग रहा था. लिटरली फील दैट. आई एम टेलिंग यू, इट you'll feel really better thinking that. क्योंकि इसका अगला सवाल ऐसा है, do you want that same type, that same kind, that same emotion, feeling and frequency in that relationship again now? Can you bring it again? You can. क्योंकि आप वो सेम इंसान हो, वो भी आप भी सेम हो, तो हम वो फिर से ला सकते हैं. क्यों खो गया? आस्क योरसेल्फ, व्हाई दैट कनेक्शन लॉस्ट? ऐसा क्या हो गया था कि वो चीज कमजोर हो गई? जो चीज आप महसूस कर रहे थे, वो फीलिंग कहाँ चली गई? कहाँ गया वो बिलीफ? कहाँ गया वो इमोशन? कहाँ गया वो ट्रुथ? कहाँ गया वो फेथ जो एक दूसरे के बीच में था? क्यों गया? तो सबसे पहले रीजन अपने आप से पूछो, व्हाई इट हैपेंड. हो सकता है आपको उसका आंसर मिल गया होगा. शायद आपने उसे कम इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, किसी और चीजों को, आपके काम को, आपके बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया. या तो आपने उनको ग्रांटेड ले लिया कि है ना, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी. पता है यही है. क्या रीजन था? या कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हो गए जिसके वजह से आपने उन्हें ग्रांटेड ले लिया और ध्यान देना छोड़ दिया. उस रिलेशनशिप को जो नरिशमेंट चाहिए था, नर्चरिंग चाहिए था, वो आपने दिया ही नहीं, बंद कर दिया. मतलब लिटरली आपने समय पे छोड़ दिया. डू यू थिंक यू कैन गेट दैट बैक? आपको लग रहा है अरे नहीं यार, अब तो इतने साल बीत गए, इतनी उम्र हो गई, अब क्या करेंगे? आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स है 50 ईयर्स के, 60 ईयर्स के, 70 ईयर्स के, जिन्होंने फिर से अपने रिलेशनशिप को वापस से पाया है इतने उम्र में. और अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. द पॉइंट इज, डू यू वांट दैट रिलेशनशिप? क्या आपको जरूरत है इस रिश्ते की? क्योंकि जिस इंसान को जरूरत होता है ना, वो पहल करता है. वो सबसे पहले पहल करता है, डेफिनेटली. एंड द फास्टेस्ट वे टू चेंज इज फर्स्ट चेंजिंग योरसेल्फ. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट? किसी चीज को अगर चेंज करना है ना, किसी सिचुएशन को चेंज करना है, किसी रिश्ते को अगर चेंज करना है, सुधारना है, अच्छा करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होता है. हमें अपने आप को चेंज करना होता है अच्छे के लिए, अच्छे के लिए. और आप में वो क्वालिटीज है, पर आप उस व्यक्ति के सामने नहीं दिखा रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कुछ दिखा के मतलब ही नहीं है. और शायद ईगो भी आ जाता हो. मैं आपको कहती हूँ, ये ईगो कुछ काम का नहीं है. ले डूबेगा आपको, अकेले रह जाओगे. और हमने देखे ऐसे एग्जाम्पल्स जहां इंसान एंड में अकेला रह गया है, उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था. क्या मतलब बनता है जिंदगी में आने का? यार जिंदगी ऐसे जियो ना कि लोग लड़ बैठे आपको किडनी देने के लिए. कैंसिल कैंसिल ऐसा मौका नहीं आना चाहिए. बट मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया आपके लाइफ में, तो क्या आप विश्वास रखते हो, आपको फुल गारंटी है कि आपके लाइफ में 10 लोग ऐसे हैं जो आपको किडनी देने के लिए तैयार हो जाएंगे? गारंटी है? आपके पेरेंट्स को छोड़ के. वैसे काफी हमारे पास एग्जांपल्स है जिनके पेरेंट्स भी देने के लिए तैयार नहीं है. क्या आपके पास ऐसे 10 लोग हैं? तो जिंदगी में आपने इतने दिन किया क्या? 10 लोग भी कमाए नहीं. मैंने 100 नंबर तो बोला ही नहीं है. आपके रिश्ते 100 के ऊपर होंगे, आई एम श्योर. 100 के ऊपर होंगे. फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बच्चे हैं, माता पिता है, स्पाउस है ना, ये सब आपके लाइफ में. तो 10 तो होने चाहिए ना. अरे छोड़ो, 5 तो होंगे. 5 तो होंगे, 5 भी नहीं है. चलो ठीक है, 2 तो होंगे यार, 2 तो होंगे. इतना आपने सैक्रिफाइस किया लाइफ में, ये किया है, वो किया है. 2 तो होंगे. इतना पैसा कमाया है, इतनी फैसिलिटी दी है, इतना काम किया है. एक तो होगा. एक भी नहीं. आपको क्या लगता है, यू फेल्ड?
or you have passed? Ask yourself, failed or passed? And literally जब मुझे ये सवाल पूछा गया था ना, तो मेरे लिए एक आई ओपनर था. जैसे आप आज आपके लिए एक आई ओपनर था, वैसे मेरे लिए भी एक समय में आई ओपनर था. आई सेड, ओ माय गॉड, I need to work for myself. I need to work in relationship. And that moment I started working in my relationship, and I'm today proud to say that 10 क्या, उसे कई गुना ज्यादा है जो मुझे किडनी देने के लिए तैयार हो जाएंगे. और मैंने ये टेस्ट भी किया था. मैंने लिटरली एक्टिंग की थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, एंड आई नीड, प्लीज कैन यू कम. तो कितने लोग थे जो अपने टिकट भी बना चुके थे यहाँ आने के लिए, कि उनको सीरियसली लगा कि मुझे किडनी की जरूरत है. It was difficult, but it was not impossible. The point is, can you start working now? Because life अभी भी बाकी है, बहुत ज्यादा बाकी है, seriously. तो आज से, अभी से start behaving, start giving, because you will start receiving. The more you give, you will start receiving. Start, behaving the way you are. आप वही इंसान हो जो आप प्यार करते थे, आप वही इंसान हो जो एक्सेप्ट करते थे. So start accepting people the way they are in any relationship. It's okay. Understand कि वो इस वक्त इस तरह से इसलिए बिहेव कर रहा है कि कहीं तो भी वो डिस्टर्ब्ड है. शांत बैठो. जरूरी नहीं है हर रिएक्शन को, हर एक्शन को आप रिएक्शन दो. कभी कभी कुछ समय इंसान जब बहुत गुस्सा हो जाता है, बुरी तरह से बिहेव कर रहा है, उस वक्त शांत बैठना अच्छा होता है. कुछ देर के लिए शांत बैठ जाओ, और जब वो शांत हो जाए फिर बात करो. क्या हुआ? कुछ हुआ? मुझसे कुछ गलती हुई? किसी ने और तुम्हें कुछ कहा? कुछ हर्ट हुआ? टेल मी. यू कैन ट्रस्ट मी. वी कैन सॉर्ट दिस आउट. डोंट यू थिंक दिस विल हेल्प? बट हम क्या करते हैं, किसी ने जोर से आवाज से बात करी, हम डबल आवाज में बात करते हैं. किसी ने 2 शब्द बोल दिया, हम 5 शब्द सामने से बोलते हैं, और आवाज ऊंची और आवाज ऊंची, और उसका कोई एंड ही नहीं है. उसकी वजह से सिर्फ खटास आ जाती है हमारे रिलेशनशिप में, बिटरनेस, एंड देन दैट कंटिन्यूज. फिर एक बार ना किसी गाड़ी पे स्क्रैच लग जाए ना, और आप उसको पहले ही टाइम पे उसे ठीक ना करो ना, तो जितने भी स्क्रैचेस लगते जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी. ऐसा होता है ना जब नई गाड़ी लेते हैं हम, और मान लो उस गाड़ी को लेकर हम ड्राइव करके कहीं दूर जा रहे हैं, और हमने कार पार्किंग में लगा दिया और हम कुछ काम करने चले गए. आकर देखते हैं उस गाड़ी पे एक स्क्रैच है, एंड वी आर लाइक, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. एंड आप एकदम गुस्सा हो जाते हो. आपका, यू रियली गेट फ्यूरियस एट दैट मोमेंट. बट दूसरी बार भी आप गाड़ी लेके जा रहे हो, और फिर से और एक स्क्रैच, फिर से आप गुस्सा हो जाते हो. तीसरी बार जा रहे हो, फिर से तीसरा स्क्रैच. अब चौथी बार उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा आपके रिएक्शन का. आपको आदत लग चुकी है उस स्क्रैचेस की. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो करना क्या है, जब पहला स्क्रैच आ जाता है ना, उसी वक्त रिपेयर कर लो. आप अगर ज्यादा वक्त लगा दोगे ना, तो आदत पड़ जाएगी उस क्रैक की, उस स्क्रैच की, उस दर्द की, उस लाइफ उस लाइफ की, या उस रिश्ते के तरीके की. वही के वही ठीक कर लो. वही के वही ठीक कर लो. वही के वही मतलब एट दैट मोमेंट मीन्स मे बी नेक्स्ट डे. यानी एक प्रॉमिस कर लो अपने आप के साथ, एक दूसरे के साथ. सोने से पहले एक दूसरे के अंदर जो भी झगड़ा हुआ होगा दिन में, उसे कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से, और फिर सोएंगे. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम कंटिन्यू नहीं करेंगे वो चीज. जो भी हुआ है आज हुआ है, आज ही खत्म. दूसरे दिन हमें वो कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि हम अगर कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमको आदत हो जाएगी लड़ झगड़ के सो जाना, और दूसरे दिन उसी फ्रीक्वेंसी में रहना एक दूसरे के रिलेशनशिप में. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? राइट.
कितने लोग मैंने देखा है एक हफ्ते तक बात नहीं करते, एक महीने तक बात नहीं करते। कितने लोग मैं देख रही हूँ एक ही घर में महीनों सालों तक बात नहीं करते हैं। क्या मतलब बनता है ऐसे लाइफ का? क्या आपने सीरियसली ऐसा ही सोचा था? ऐसे रिश्ते चाहिए थे आपको? डू यू वांटेड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप? महीनों तक, सालों तक, हफ्तों तक, दिनों तक, क्यों? मतलब ही नहीं बनता है। सो यू फील ना, ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन सॉल्व इट, और ये मन में सोचो वी आर गोइंग टू फॉरगिव। ये मन में सोच लो, चाहे गलती किसी की भी हो, हम एक्सेप्ट भी करेंगे और फॉरगिव भी करेंगे। ये सोचना ही है, एंड वी प्रैक्टिस दैट लिटरली, वी प्रैक्टिस दैट। कैसेट को ए साइड बी साइड रिपीट मत करते जाओ। काफी बार होता है ना, सुबह हम में झगड़ा हो जाता है एंड हस्बैंड काम पे चले जाते हैं और वाइफ दिन भर, उन्होंने मेरे साथ ऐसे बात ही कैसे किया, ये कौन सा तरीका था, मैं क्या इंसान नहीं हूं क्या? नॉर्मली होता है ना ऐसे। और दिन भर हम उसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, खाना बनाते वक्त, घर का काम करते वक्त, रेस्ट लेते वक्त, और हम रुके रहते हैं कब वो शाम को आ जाए और हम वो एटीट्यूड दिखाए कि हम हर्ट है, हम नाराज है। और वो इंसान में भी घर लौटता है और बोलते हैं अरे खाना लगाना, चलो हम खाना खाने बैठते। और आप गुस्से में खाना परोस दिया है, यू कैन हैव इट बाय योर ओन। वो इंसान बोलता है अचानक क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? वो सोच रहा है ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, और आप फिर भी एटीट्यूड में। इट कैन बी फॉर ऑपोजिट ऑल्सो, इस तरह से आदमी भी कर सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। फिर वो आदमी सोचता है, हस्बैंड सोचे ओ सुबह झगड़ा हो गया था, ओ माय गॉड, वो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, टू बी कंटिन्यूड। मैं तो भूल भी चुका था, मैं तो काम में चला गया था, मैं तो भूल भी चुका था, पर ये तो अभी तक उसी में है, सुबह के सिचुएशन में अभी तक है, और पता चलता है दूसरे दिन तक भी है। इट्स लाइक क्यों आपके फ्रीक्वेंसी को आप ड्रॉप क्यों कर रहे हो? फॉरगेट इट। तब हुआ हो गया जाने दीजिए, या तो बैठ के सॉल्व कीजिए या तो भूल जाइए, इट्स ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अन्ना ही सेम करो एंड ऑल दैट, नो। इफ इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू नो व्हाट टू डू, मूव आउट। बट अगर रिलेशनशिप में कुछ गुंजाइश है, कुछ स्कोप है, यू कैन इम्प्रूव इट, यू कैन इम्प्रूव इट। ये देखिए ना, 6 ह्यूमन नीड्स होते हैं, सातवां कोई होता ही नहीं। 6 ह्यूमन नीड्स रहते हैं जो हर एक इंसान को जरूरत होता ही है, हर रिश्ते में, और हर इंसान को जरूरत होती है। और ये 6 ह्यूमन नीड्स ना एक ऑक्सीजन की तरह होता है, कि अगर हमको ना मिले ना तो हमारा दम घुटता है, वी फील सफोकेटिंग। तो ये 6 ह्यूमन नीड्स का है, आपको पता है? तो इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सिग्निफिकेंस, लिख लो। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस यानी उसका सेकेंड वर्ड अगर सेम वर्ड में कहूं तो इंपॉर्टेंस, अटेंशन, अप्रिसिएशन। हमें सबको चाहिए यार, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, अप्रिसिएशन, अटेंशन, हम सबको चाहिए, राइट? आई एम श्योर ऐसा कोई बंदा नहीं, इनफैक्ट ये मोस्ट ऑफ द पीपल की मोस्ट टॉप नीड होती है। सेकेंड टाइप ऑफ नीड इज यू कैन कॉल इट चेंज और वैरायटी। यानी उस इंसान को नई नई चीजें पसंद है, एडवेंचरस लाइफ पसंद है, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, पैटर्न्स, डिजाइन्स ट्राई करने की आदत है। फॉर एग्जाम्पल नए नए होटल्स में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, अलग अलग डिशेस ट्राई करना, है ना, वैरायटी। सो हम हर किसी में, किसी ना किसी में होता है। रिस्क, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है इस इंसान में। हो सकता है आप वैसे ही आपकी वो नीड ना हो, टॉप, इट्स ओके। थर्ड टाइप है सर्टेनिटी, यानी हम सेकेंड वर्ड दे सकते हैं सेम, सिक्योरिटी, एक जैसा। मतलब ये टाइप के जो लोग होते हैं ना, उन्हें एक ही रेस्टोरेंट में जाना पसंद है, एक ही टाइप का खाना खाना पसंद है, एक ही टाइप के ब्रांड के कपड़े लेना पसंद है, एक ही टाइप के कलर के भी, सेम कलर, फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक। उसे ज्यादा कलर्स नहीं पसंद, उसी के शेड्स के कलर पसंद। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इसे?
कि हाँ यार, बस आई वॉन्ट ओनली व्हाइट ब्लैक क्रैक एंड ब्लू, उसके ज्यादा मुझे नहीं पसंद। हाँ नहीं, मुझे उसी रेस्टोरेंट में वही इडली सांभर पसंद है, या वही डिश पसंद है, मुझे ज्यादा एडवेंचरस लाइफ नहीं पसंद है। काफी बार ऐसे कपल्स होते हैं ना, एक कपल ऐसा होता है उसको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ट्राई करना पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड टाइप्स ऑफ फूड ट्राई करना पसंद है, रिस्क उठाना पसंद है। और वही दोनों में से एक इंसान ऐसा होता है, एक ही रेस्टोरेंट, एक ही टाइप ऑफ फूड, एक ही टाइप ऑफ ब्रांड के कपड़े, ज्यादा चेंज नहीं पसंद है जो है वो, क्योंकि उनको सिक्योर फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। वैरायटी लोग अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के कुछ ना कुछ हमेशा ट्राई करते रहते हैं। एक होता है लव एंड कनेक्शन, द फोर्थ टाइप, लव एंड कनेक्शन। लव मीन्स अनकंडीशनल लव, where you feel it's like you are only giving giving and giving। वैसे आजकल ऐसा कुछ है नहीं, when you give you really expect, ये होता ही है। हम इसलिए ही देते हैं काफी बार कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने भी उस तरह से बिहेव करना चाहिए। एंड कनेक्शन इज लाइक यू आर फीलिंग कनेक्टेड टू द पर्सन थ्रू लव, और थ्रू अगर वो कुछ अच्छे लेवल पे है तो उसके वजह से आप वो सिग्निफिकेंस के लिए उस रिश्ते में है, या बच्चों की वजह से उस रिश्ते में कनेक्टेड है, उस रिश्ते में बच्चों की वजह से या किसी समाज की वजह से। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। contribution contribution is like really no expectations, you're just contributing with your will, with your will, आपकी इच्छा से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो आपने लिख लिया होगा ना, एक था सिग्निफिकेंस जैसे इंपॉर्टेंस, सर्टेनिटी, वैरायटी, लव एंड कनेक्शन, है ना, कंट्रीब्यूशन। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आपके रिश्ते में आप समझ रहे हो ये चीज कि सामने वाले इंसान को चाहिए क्या, सामने वाले इंसान को चाहिए क्या? लव एंड कनेक्शन चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, वैरायटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। हाउ आर यू डीलिंग विद इट? हाउ आर यू डूइंग? You need to understand your life partner, your friends, or any relationship. You need to understand what is his psychological needs. और जिस वक्त हम किसी के psychological needs को समझ लेना, या top 3 needs को भी समझ लेना, वो आपका फैन बन जाएगा, आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अगर आपको पता है ना कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या आपके बच्चे को, आपके पेरेंट्स को इंपॉर्टेंस अच्छा लगता है, अटेंशन अच्छा लगता है, दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या, रिश्ता तो आपका ही है, कर लो तारीफ, इट्स ओके। वाह कितना अच्छा खाना बनाया यार, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, आप कितने केयरिंग हो, हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, मुझे शॉपिंग को लेके जाते हो, हमेशा ध्यान देते हो मेरे पास कुछ चीजें है या नहीं, इवन इफ आई एम नॉट वेल आप मेरा पूरा ध्यान रखते हो। दो ना इंपॉर्टेंस, करो ना तारीफ, आप बेस्ट हो। दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी डू in this every single day, literally. If I understand that he loves to be in the comfort zone, I will not force him. I will, okay fine, ठीक है, आपको रेस्ट करना है कर लो, आई गो एंड एंजॉय। या काफी बार समझ लो हमको रेस्टोरेंट जाना है, एंड ही सेज नो आई वांट टू गो टू दैट ओनली प्लेस एंड हैव दैट ओनली डिश। आई सेड ओके फाइन, कम ऑन लेट्स गो, आई नो यू लव दैट डिश एंड दैट रेस्टोरेंट, लेट्स गो देयर। जाते हैं और एंजॉय करते हैं। व्हाट हैपेंस जब हम उनके नीड को एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ शामिल होते हैं, तो वो खुद एक समय ऐसा आ जाता है तो बोलते नहीं आज आपके चॉइस के रेस्टोरेंट से जाएंगे, लिटरली हिल्टन। नहीं, आपको पता है ना वो, यू लव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड ट्राई समथिंग न्यू, कम ऑन लेट्स गो देयर। बट द पॉइंट इज व्हाट वी डू इज, मुझे नहीं जाना, वही रिले, वही रेस्टोरेंट, वही खाना, बस मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं जाना, आपको जाना है तो आप जाइए। फिर वो क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाएंगे, वो भी आपको चाहिए नहीं। समटाइम्स से यस, जब आप यस कहोगे ना तो उनकी नीड को आप फुलफिल कर रहे हो ना,
तब वो आपकी नीड को भी फुलफिल करेंगे. इट्स ओके. दिस इज हाउ व्हाट वी शुड डू फॉर ईच अदर. दिस इज व्हाट वी शुड एक्चुअली, you know, work with each other. Because if you are not, because एक याद रखो, हम रिलेशनशिप ना एक दूसरे को कोई नौकरी पे नहीं रख रहा है, जॉब पे, रिक्रूटमेंट नहीं, समझ रहे हैं आपको? ये टॉवल यहाँ क्यों रखा, ये कपड़े ऐसे क्यों रखे, ये चप्पल इधर क्यों निकाला, ये पर्स इधर क्यों फेंका, ये बैग इधर क्यों रखा, ये बर्तन इधर क्यों रखे. अगर आपको क्लीनलीनेस पसंद है तो आप कीजिए. बट हम क्या करते हैं भाई, ये रिमोट का कंट्रोल, ये जो मेरे हाथ में है ना, वो तुम्हारा है, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं कंट्रोल करूंगी आपको. उठो, बैठो. इमेजिन वी डूइंग दिस, वी डू दिस विद आवर किड्स आल्सो. उठो, बैठो, खाओ, नहाओ, चलो, स्टडी करो, ये करो. इमेजिन आपके साथ ऐसे मैं करूं तो, या कोई आपके साथ करे तो. चलो उठो, खाने का टाइम हो गया, बस खत्म. अभी उठो, सोने का टाइम हो गया, चलो बस अभी टीवी देखने का टाइम नहीं है, चलो छोड़ो, अभी बाहर नहीं जाना है, इतना ही खाना है, उतना ही खाना है, यही खाना है, यही कपड़े पहने. इमेजिन अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं या कोई आपके साथ करे, आपको कैसे फील होगा? Definitely you will not love that. When you don't love that, why are you practicing that with others? जब आप खुद नहीं चाहते हो आपके साथ कोई इस तरह से बिहेव करे, आप क्यों कर रहे हो? नॉर्मली हम क्या कहते हैं, मुझे तो क्लेanलीनेस पसंद है, मुझे तो परफेक्शन पसंद है, मुझे टाइम पे आना पसंद है. ये आपको पसंद है ना, तो आप प्रैक्टिस करो. यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी. और वो धीरे धीरे कर लेगा आपके साथ. नो नीड टू फोर्स, क्योंकि जितना आप फोर्स करेंगे ना, उतना वो बिगड़ते जाएगा. तो कितने बार ऐसा होता है कि मैंने एक वाज रखा है और दूसरे दिन वो वाज थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, तो मैं तुरंत जाती हूँ वो वाज को उस जगह पे रख देती हूँ, या उस बैग को उस जगह पे रख देती हूँ. बिकॉज आई लव ऑर्गेनाइज्ड होम और वर्क प्लेस. मुझे पसंद है, इसलिए मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ. आई डोंट एक्सपेक्ट. व्हाई शुड आई एक्सपेक्ट? बिकॉज आई लाइक दैट. और एक दिन ऐसा आएगा ना, किसी दिन मैं नहीं रहूं और वो चीजें अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उन्हें एक समय ऐसा आएगा कि उनको भी अखरेगा, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा उनके आंखों पे. वो खुद जाएंगे और उसे सही जगह पे करेंगे. आई एम टेलिंग यू, दिस विल हैपन. एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन खुद ब खुद, या चौथे दिन, या 10 दिन बाद, या 1 महीने बाद वो खुद ब खुद ऑर्गेनाइज करेंगे या करवा के ले लेंगे. बिकॉज उन्हें भी आदत लग चुकी है ऐसे चीजें देखने की. बट हम में पेशेंस ही नहीं है. हम चाहते हैं वो अभी के अभी ही हो. शादी कर ली, वो मेरा प्रॉपर्टी है. बच्चे हो गए, वो मेरा प्रॉपर्टी है. भाई, वो हमारे प्रॉपर्टीज नहीं है, जागीर नहीं है. फ्री कर दो. जितना पकड़ के बैठोगे ना, उतना बिगड़ते जाएगा, उतना बिगड़ते जाएगा. ट्रस्ट में. और ना ही आपको फ्रीडम मिलेगा, ना आप सांस ले पाओगे उस रिश्ते में, और ना सामने वाला. एंड तो आपको पता ही है क्या होगा. सो हाउ डू यू प्रॉमिस योरसेल्फ टुडे? डू यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड द अदर? क्योंकि आप चाहते हो मैं जैसा हूं, मुझे वैसे एक्सेप्ट करने वाला कोई इंसान चाहिए. सोचते हो ना? तो क्या ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इंसान जैसे भी है उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करे? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? डेफिनेटली है. कैन वी डू अ स्मॉल एक्टिविटी टुडे? रेडी? एवरीवन रेडी? ग्रेट. आईज क्लोज. कम ऑन क्विकली, आईज क्लोज. क्विकली आईज क्लोज. और दिल पे हाथ रखो. Your right hand and left hand on your heart. Come on, quickly, quickly. Come on, everyone. Yes, come on, everyone. For all my relationships, I am sorry. I took you granted.
I ignored you. For all my relationships, please forgive me. I hurted you many times. I took you granted. I ignored you. I disrespected you. I didn't accept you the way you are. For all my relationships, thank you. Thank you because you made me realize that you are so important, and even me, that I'm important in this relationship. Thank you for making me realize what I am today. Thank you for always being there when I needed you. And I never said this. Today I want to say, for all my relationships, जो मैंने आज तक अभी तक कहा नहीं है, I want to say this today. For all my relationships, I love you. I love you for always being there, unconditionally. I love you for accepting me the way I am, with my positive and my negatives. So let's repeat this for some time. For all my relationship, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. For all my relationships, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. For all my relationships, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. For all my relationships, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. For all my relationships, I'm really sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. And literally feel this energy around you. Visualize that all your relationships are now improving. Every day you're feeling that you exist in that relationship. हर दिन आप महसूस कर रहे हो कि आप उस रिश्ते में हो, एग्जिस्ट करते हो. आपका रिश्ते, आपके जितने भी रिश्ते हैं, वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं. फील दैट. याद कीजिए उस बेस्ट टाइम्स को जो आपने साथ में बिताए हैं. फील कीजिए, बिलीव कीजिए, एंड प्रॉमिस कि आप यू विल नॉट टेक एक्शन टुवर्ड्स इट नाउ. आपके रिश्ते को सुधारने के लिए अब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हो. प्रॉमिस योरसेल्फ. Promise yourself that you are going to work on your relationships each and every day, be it any. You're going to get, all the freedom from the struggle forever and ever and ever, and feel blessed. Feel blessed with whoever are there in your life today. Feel blessed. There are people who don't have, and they are missing, most of the people, most of the relationship. So we are lucky what we have today. So be thankful for what you have today. Because when we are thankful for what we have today, the happiness and the love keeps on doubling up, multiply hota hai. But if you're not thankful for what you have today, even that is gone forever. So start being thankful for what you have today. Say, I'm thankful. मैं आभारी हूं. मेरे जितने भी रिश्ते हैं, मैं उनके बहुत बहुत आभारी. Now open your eyes with a beautiful smile and with that belief that yes, all my relationships are loving me, supporting me, and with me always and always and always. And remember, you have promised yourself कि relationship के लिए आप काम करोगे. You will work for it. You will put in efforts. You will bring that love, that goodness back in your relationship.
जितने भी आपने इनिशियल डेज में जो महसूस किया था ना, जो इमोशंस महसूस किया था, उसे फिर से आप लेकर आओगे। जो चला गया है वो चला गया है, कोई बात नहीं। अभी का समय तो आपके हाथ में, फ्यूचर को कैसे किस तरह से क्रिएट करना है वो तो आपके हाथ में, आप ही के हाथ में। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, रिमेंबर, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ। सो स्टॉप ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेन। उसे कन्वर्ट कर दो ब्लेसिंग एंड अप्रिसिएशन में। एंड इट्स ओके, आई टोल्ड यू ना, इट्स ओके टू अप्रिशिएट। इट्स योर्स यार, इट्स योर्स रिलेशनशिप, आपका है वो रिश्ता, तो कीजिए ना अप्रिशिएट, दीजिए ना इंपॉर्टेंस, दीजिए ना अटेंशन, कीजिए ना तारीफ। आपका रिश्ता है वो, किसी और का नहीं। नरिश कीजिए उसे। हमारे घर में छोटा सा पौधा होता है तो हम कितना ध्यान रखते हैं, उसे पानी देते हैं, धूप हवा खत देते हैं, कितना ध्यान रखते हैं ना। और जब उसमें से फूल आता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, सबको खींचे, ये देखो ना कितने अच्छे रोजेस आए, कितने अच्छे फ्लावर्स आए, ये देखो कितना हरा भरा हो गया, होते हैं ना खुश। तो आपके रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं यार, आप ही के हाथ में। एंड यू हैव ऑल दैट क्वालिटीज आपके अंदर है, पर वो समय से कहीं तो भी उन्होंने खो चुके थे। उसे लेकर आइए और जाने मत देना फिर से। ये रिश्ते आपके हैं, और आपको अगर जरूरत है ना रिश्ते की, पहल करो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, करके तो देखो। एक बार, दो बार, तीन बार करके तो देखो, फिर बात की बात है, जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। अगर तीन चार बार ट्राई करने के बाद भी नहीं वर्कआउट होता है तो जवाब तो आपको मिल ही चुका है। बट पहली बार तो ट्राई कीजिए, दूसरी बार तो ट्राई कीजिए। हम रोटियां भी बनाते तो थोड़ी ना पहली बार गोल होता है, नहीं होता है। हमको ट्राई करते रहना पड़ता है ना, तब जाके वो आकार उसका गोल हो जाता है रोटी का। एग्जैक्टली रिलेशनशिप यार ऐसा ही है यार, ऐसा ही है। सो ट्राई एंड मेक इट ब्यूटिफुल, एंड आई एम श्योर यू विल डू। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज से आपके रिश्तों पे काम करना शुरू कर दोगे, एंड you'll start loving each other, you'll start improving with each other, you'll start accepting each other the way you are, है ना। तो वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, वो किसका है? खुद का है। जो आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वो खुद का है, उनका नहीं, दूसरों का नहीं है। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों को करने मत जाओ, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी। आई होप दिस सेशन is really brought a lot of understanding, एक eye opener ball bomb moment था आपके लिए। I'm sure कुछ ना कुछ तो मैंने literally have put in efforts to bring this awareness inside you and to you, and I'm sure it's going to work for you। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, and I'm waiting for the comments really। तो जितने भी ऐसे सोच रहे हैं ना कि या वी आर गोना वर्क और वी आर लिटरली वर्किंग फॉर इट एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, to do share your results. I'm waiting for it. I love to read your comments. So thank you. This is Pooja Shah, your life coach, and thank you for being there. So happy relationship. Yeah. Thank you and love you all.